Friends, I welcome you in the last session of electricity topic. There will be one more small part we have to discuss, but I thought that we'll discuss that when we actually meet. It's a very small part, but bit difficult in terms of its numericals. And hardly the question appears from that particular section. So I just kept it aside, and we are not going to discuss in the online session all that part. But other things will be completing. So what I have taken today, all the questions that what I had asked you yesterday to solve from the exercises, all that are here now on the board. I'll be solving one by one all the questions. What you have to do is you have to just understand and find out whether you have gone somewhere wrong. Okay, so that's it, nothing else. Let's continue as fast as possible because we have to complete all the questions from the exercise. Let's continue. The piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. So piece of wire R is cut into 5 equal parts. These parts are connected in parallel, 5 equal parts. That means what is happening here? Try to understand. There is a conductor which has got resistance R. It is converted into 5 equal parts. Okay, so this is what 1 2 3 4 5 equal parts it is converted. So each resistance will be R by 5, R by 5, R by 5, R by 5 and R by 5, right? Is this clear? Then all these are connected, that means are in parallel. Okay, so this is connected in parallel. All these resistances are connected. This is R by 5 and all. Okay, done. And now you're expected to find the equivalent resistance, that is R dash. So 1 upon R dash, here I'll do it. 1 upon R dash is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4 plus 1 upon R5. Okay, and all are R by 5. So it will be 5 by R plus 5 by R plus 5 by R plus 5 by R and plus 5 by R. So how many times it is? 1 upon R dash is equals to 5 plus 5 plus 5 plus 5. 5 5s are 25 by R. I can shift this R the other side. I get R upon R dash is equals to 25. What is asked? R upon R dash, and the answer is 25. Right? So answer is D. That is 25. Clear? Quickly go for the next one. Which of the following term does not represent electric power in a circuit? तो चेक करते हैं द फॉर्मूली. I square R, yes. VI, of course, basic formula. V square by R, yes. So this is the answer. Okay, B is the answer. Okay, confusion होगा आपको. ठीक है, मैं सब कुछ इरेज कर देता हूँ. The answer is B, IR square. तो easy था. Next one. An electric bulb. Okay, electric bulb is rated V is 220 volt and power is 100. P is equals to 100 watt. When it is operated at this one, the power consumed will be न्यू पावर इज आस्क्ड फॉर अस. न्यू पावर इज आस्क्ड फॉर अस. ओके, न्यू पावर जो भी होगा, मुझे लगता है आंसर 25 होना चाहिए बिकॉज वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई रिमेंबर, बट स्टिल आई विल सॉल्व इट. देखो, इन दोनों के हिसाब से हमें क्या करना है, जो अप्लायंसेज जो बल्ब है उसका क्या फाइंड करना होता है, रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है. नॉर्मली हम लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, हम लोग करंट फाइंड करते हैं देन वी यूज दैट. बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिकॉज बल्ब का रेजिस्टेंस जो होगा वो रहेगा कॉन्स्टेंट. तो जो कॉन्स्टेंट रहेगा उसी के पीछे हमें पढ़ना है. तो यूजिंग दिस आई विल फाइंड आउट रेजिस्टेंस, यूज दैट रेजिस्टेंस टू फाइंड आउट पावर ऑफ द 110 वोल्ट के लिए. ठीक है, तो दो सेट्स मेरे पास है, एक ये सेट है, दूसरा है V इज इक्वल्स टू 110 वोल्ट एंड इसका पावर मुझे फाइंड करना है ये कितना आएगा. तो दोनों में कॉमन एक कोई तो होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट R. तो R विल कनेक्ट दिस टू सेट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. तो हम R फाइंड करते हैं यूजिंग दिस वैल्यू. तो आई नो दैट कि पावर इज इक्वल्स टू, आई जस्ट इरेज दिस, पावर इज इक्वल्स टू V square upon R, I think, right? So power is 100, V square is into 220 upon R. R इधर आ गया, 100 इधर आ गया. तो R will be equal to 22 into 22. As I have told you, I'm not going to multiply it. So it is ohm, right? Now I'm going to use the same here. So here power is equals to V square upon R. V square is 110 into 110 upon R is 22 into 22. So it is 22 ones are 22 5s are 22 ones are 25. I remember this question. 25 watt. So answer is 25. Yes, clear. चलो फोर्थ
Let's go for the fourth one quickly. Two conducting wire of the same material. This is what the part I was talking about. So we'll be discussing all that when we actually begin the class. It's a very small part. We have got this part in your PDF, but I did not take it. The purpose is different. Okay, so we'll be discussing all that part later on. ठीक है, चलो आगे देते हैं. उस टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे. तो वी हैव द अनदर वन. दिस इज द क्वेश्चन. व्हेन 8th में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 9th यहाँ पे करता हूँ. सो व्हेन 12 वोल्ट बैटरी, तो V इज़ 12 वोल्ट, इट्स कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस. तो R मुझे पता नहीं है. देयर इज़ अ करंट गिवन I इज इक्वल्स टू 2.5 मिली एम्पियर. नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मिली एम्पियर. फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस सर्किट. मतलब R मुझे फाइंड करना है. ओम्स लॉ यूज़ करना है. V इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. तो दैट्स इट. R इज इक्वल्स टू V अपॉन I करना है. लेकिन I इज गिवन इन मिली एम्पियर, तो आई हैव टू कन्वर्ट इनटू एम्पियर. तो मिली एम्पियर टू एम्पियर कैसे कन्वर्ट करते हैं? नाउ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि मिली एम्पियर टू एम्पियर में कन्वर्ट कैसे करते हैं. देख लो, मिली सेंटीमीटर मिलीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वैसे ही मिली एम्पियर टू एम्पियर में मिलीमीटर टू मीटर कैसे करते हैं. तो मिलीमीटर टू मीटर वी हैव टू कन्वर्ट. तो क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड बाय 1000 करते हैं. रिमेंबर दैट. तो मिलीमीटर, mm टू मीटर, mm टू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 एंड सेंटीमीटर टू मीटर अगेन डिवाइड बाय millimeter to centimeter divided by 10 and centimeter to meter divided by 100. So 1000, yes, 1000 is the factor. So milliampere is a small unit to large unit you have to divide. तो 1000 से डिवाइड करना है. सो 2.5 डिवाइडेड बाय 1000 एम्पियर. तो पहले कन्वर्ट कर दिया. तो आई कैन फाइंड आउट R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. ठीक है, V इज 12, I कितना हो गया? 2.5 इंटू 1000. होप यू नो दिस कन्वर्जन. ठीक है, तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं. इसको मल्टीप्लाई बाय 10, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10. तो आई गेट 12 इंटू 1000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25. 25 1 जा 25 4 जा 100 0. राइट, जस्ट अ मिनट. Okay, so we have 12. So you can multiply 12 into 40 into 10 and that will be answer in ohm. ठीक है, तो that's it, done. 9th क्वेश्चन देखते हैं. अगेन द सेम थिंग. अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट. तो V इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ रजिस्टर्स. सो मेरे पास इतने सारे रजिस्टर्स है, तो आई कैन गो फॉर RS इज इक्वल्स टू 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, राइट, रिस्पेक्टिवली. हाउ मच करंट? तो मुझे करंट फाइंड करना है. तो मेरे पास रेजिस्टेंस मिल गया, करंट मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, राइट. तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.35 5 प्लस 4 0.9 0.9 प्लस 0.5. ठीक है, 0.9 प्लस 0.5 14 1.4, राइट. 1.4 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 13.4 ओम हो जाएगा, राइट. 13.4. ठीक है ना, बराबर है ना. चेक करो फिर से. 5499, yes, it is 13.4, right. So now I have R is equals to V upon I, Ohm's law. So I can easily find out I is equals to V upon R, which is 9 upon 13.4. ठीक है, which is going to be equal to 90 upon 134. You can find this answer if you want, otherwise you can keep in the fraction. Okay, let me just verify the answer if you want. 9 वोल्ट करेक्ट. एंड देन ये सही है ना, बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है. 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 9 9 प्लस 3 12 12 प्लस 2 14, मतलब 1.4 बराबर 1.4 प्लस क्या हो जाएगा? 12.0. यस, 13.4 करेक्ट है. नो इशू एट ऑल. ठीक है. सो हाउएवर वेरी वियर्ड आंसर आ रहा है, बट नो ऑप्शन, वी कैन कंटिन्यू द सेम. I don't think it is even divisible by this one. Just a minute, someone has.
Okay, so you can keep the answer in the simplest form, and that is the ampere. Okay, whatever the answer is, that is nothing but your ampere answer. But what is asked here? How much current would flow through the 12 ohm resistor? Now you can understand this is the first resistor, second, and so on, and this is the last one, which is 12 ohm resistor. Now what do you think? What do you think, that the current will be same or it will be different? Yes, it is going to be same. So whatever the current is passing through all these resistors, the same is passing through the 12 ohm resistor. So this is itself is the answer, right? Clear? Sixth one. Let's go for quickly the next one, fast. So here we have, ये हो गया ना? Here we have 10th one. चेक करते हैं थोड़ा सा. I will read it if you want. How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere current on 220 volt line? That means V is given 220 volt, I is given 5 ampere, right? And R is given 176. But this is not a single R. We have many such resistors which are connected in a parallel combination. So here is that connection, and so on. And to this one we have 220 volt battery, and the current is 5 ampere. Okay? Now how many such resistors are connected? Don't know. So let us check, let us consider that there are n such resistors. So let n such resistors are connected. So what do I get? If they are connected, so 1 upon Rp, the total is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1. Total resistance I am finding R3 plus dash 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 plus 1 upon Rn, because there are n such resistors. But all value is same, that is 176. So this will be 1 upon 176 plus 1 upon 176 plus so on plus 1 upon 176. So how many such resistors are there? N. So n upon 176 is nothing but 1 upon Rp. So this implies Rp will be equal to 176 upon n. Now I am expecting n value. So for this I will be using Ohm's law. Now, so the total equivalent resistance is this, V is this, I is this. So R is equals to V upon I. That means 176 upon n is equals to V 220 upon I, which is 5. So if I want n, all that we will shift the other side. So I get n is equals to, understand, n I am shifting here, n is equals to 176 into 5 divided by 220. I can find the answer easily, because ये जो है ये 11 से divisible है, and same is this is divisible by 11. So I think the answer becomes 4. I think so. I'm not sure, but find out your answer and let me know. Next one. I'm doing very fast so that each question will be covered. Wherever you have got doubt, same question you can check. 11th one. Show that how would you connect 3 resistors, each of this one. ये हमने किया था. 4 कॉम्बिनेशंस होते हैं 3 रेजिस्टेंस के. ठीक है, एक है ये 1 6 6 6 ऑफ कोर्स ओम. दूसरा होता है ये, यू नीड टू नो दैट 6 6 6. तीसरा होता है दिस वन, 2 in parallel and 1 in series, 6 6 and 6. And last one is this one, 2 in series, and to the series there is 1 parallel, 6 6 6. So these are the 4 combinations, A, B, C and D. Remember this. ये तो सीरीज में है, ये पैरेलल में है, 2 पैरेलल एक और एक सीरीज में, और 2 सीरीज में, एंड देन थर्ड वन पैरेलल. तो दीज आर द 3 रेजिस्टर्स. इसका फर्स्ट वाले का क्या आता है? 6 + 6 + 6 18. सेकेंड वाला क्या आता है? 1/6 + 1/6 + 1/6 विच विल बी 3/6 विच विल बी 1/2.
सो विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/RP. सो RP विल बी इक्वल टू 2 ओम. तो 2 आता है, 18 ओम आता है. इसका क्या था देखते हैं, सी का. तो आई थिंक सी एंड डी आर गोइंग टू बी द आंसर. तो एक सी होगा, एक डी होगा. इसमें मुझे लगता है, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो इसका 1/RP इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 विच इज़ 2/6 एंड दैट इज़ 1/3. तो RP विल बी इक्वल टू 3, राइट. ये 3 + 6 9 हो गई ये. तो दिस इज़ योर फर्स्ट वन एंड दिस इज़ योर सेकेंड वन. 4 ओम आता है वो. दैट्स इट. Okay, I hope you can do that. You can give these two and then find out, show that it is going to be equal to 9 ohm and 4 ohm. Okay, so when it comes in examination, you have to manage all these 4 and then give it. ठीक है. And normally you know that कि highest series में आता है, lowest parallel में आता है. You know that very well. चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, next one. Several electric bulb designed to be used on 220 volt electric supply line. Okay, are rated 10 watt. ठीक है. So that means power of bulb is 10 watt. Potential difference V is 220 volt. How many lamps can be connected in a parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable, that means possible current, is 5 ampere. So I is given, which is 5 ampere. That's it. Simple. What I know, power is equals to VI. You remember that? Power is equals to VI. Now एक बल्ब का पावर कितना है? 10 वाट है. तो n बल्ब का पावर कितना होगा? n इंटू 10 वाट, 10n वाट. ओके, लेट देयर बी n बल्ब्स. सो पावर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10 इंटू n वाट. ये हो गई 10 वाट की पावर. तो वो पावर यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं. 10n इज इक्वल टू वी. वी कितना है? 220 वोल्ट. वी इंटू आई, वी आई होता है ना, इंटू 5. सो n इज इक्वल टू 220 वोल्ट इंटू 5 अपॉन 10. 0 0 गेट कैंसिल. 110 बल्ब्स आर अलाउड. सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. आगे बढ़ते हैं. 10th वन. अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन इज कनेक्टेड. However the appliances, it's okay, volt पकड़ लो, 220 volt, right, has two resistance coil, as coil A and coil B, has two resistance coils A and B, each of, okay, 24 ohm for A and for B it is 24 ohm. Okay, which may be used separately. Okay, तो ये separately use करते हैं, in series, okay, or in parallel. Okay, fine. What are the current in 3 cases? अच्छा, 3 cases मतलब सेपरेटली यूज़ किया, सीरीज़ में यूज़ किया एंड पैरेलल में यूज़ किया. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. चलो सबसे पहले सेपरेट मतलब R विल बी इक्वल टू 24. ठीक है. तो R इज इक्वल टू V अपॉन I इज इक्वल टू V अपॉन R. V इज़ 220, R कितना है? 24. दिस इज द एम्पियर. वट एवर आंसर इज, दैट इज़ योर एम्पियर. इन सीरीज में, इन सीरीज, तो आर एस विल बी इक्वल टू 24 प्लस 24 विच इज 48 ओम, राइट. सो योर आर विल बी इक्वल टू वी अपॉन आई, और डायरेक्टली नाउ आई कैन राइट एज आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर. सो आई हैव वी इज 220 अपॉन 48 एंड दैट्स माई एम्पियर. एंड लास्टली वी नीड टू गो फॉर पैरेलल. तो 1 upon RP, you know this very well, is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, which can be 1 upon 24 plus 1 upon 24, which will be 2 upon 24, which will be 1/12, right. So RP will be equal to 12. So I is equals to, current is equals to V upon R, which will be 220 upon 12, and that is in the ampere. So you can write these answers in the simplest form and that will be answer, or if you want to write in decimal, you can write that decimal. So what is answer in the behind the text? You check that and accordingly you can modify your answer. Got it? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं. कम ऑन फास्ट. कंपेयर द पावर यूज्ड इन R 2 ohm. ओके, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स. तो दोनों सर्किट्स के लिए चेक करना है. यहाँ फर्स्ट के लिए देखते हैं. यहाँ पे फर्स्ट करते हैं, यहाँ पे सेकंड करते हैं.
6 वोल्ट बैटरी, तो V इज इक्वल टू 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ दीज रेजिस्टर्स. अरे बाप रे. कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following circuits. Okay, so series with this two, तो इसके साथ और इसके साथ अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो RS विल बी इक्वल टू ये 2 + 1 + 2, तो कितना हो जाएगा 5 ओहम. ठीक है, तो इसका पावर फाइंड करते हैं. अभी ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस एंड दिस इज माय पोटेंशियल डिफरेंस. तो पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R, यू रिमेंबर दैट. तो 36/5. ओके, वॉट एवर द आंसर इज दैट इज इन योर वैट. सेकेंड केस में क्या किया है, 4 वोल्ट बैटरी. तो V इज इक्वल टू 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर. तो मेरे पास क्या क्या है, ऐसा है 2, 12 एंड 2 अगेन, ऐसा है. तो 1/2 + 1/12 + 1/2. मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको ठीक से करना है. 1/RP इज इक्वल टू, तो 12 चाहिए तो 6 हो जाएगा ना ये. 6/12, 6/12, 6 + 6 इज 12 + 1 13 इज 13/12 1/RP. तो RP विल बी इक्वल टू 12/13. तो ये है मेरा टोटल रेजिस्टेंस आर. तो वी हैव पावर इज इक्वल टू V², दैट मीन 16 अपॉन R क्या है 12/13. सो 12/13 विच कैन बी इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 16 × 13/12. तो 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा, दैट्स इट. 4 3 ज़ा 4 13 ज़ा 52/3 इज माई पावर वैट. दैट्स इट. थोड़ी एम्बिग्विटी हो सकती है इन केस ऑफ दिस वन, द सेकेंड वन, क्योंकि ये ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट गिवन कि ये विथ 12 ओहम एंड 2 ओहम रजिस्टर. ओके, नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ है. मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ है इसमें. एक मिनट है, मैं सब कुछ इरेज करता हूँ. आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे पूछा क्या है, थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है, क्योंकि अभी समझ में आ गया मुझे. ये क्या है, ये 12 ओम रजिस्टर जो है, देखो, कंपेयर द पावर यूज इन 12 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट. तो ये जो है ये अलग नहीं है, ये यही है जो 2 ओम और 2 ओम यहाँ पे दिया हुआ है. ओके, सो दैट इज देयर. तो इसका मतलब क्या है, देख लो. इन फर्स्ट क्वेश्चन ये है सर्किट, ट्वेल्व ओम एंड 2 ओम एंड बैटरी 6 वोल्ट. एंड इन सेकेंड क्वेश्चन ये है सर्किट. ओके, तो ये अलग नहीं है, ये सेम ही है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये है, तो ये 4 वोल्ट बैटरी है, ये 12 एंड ये 2 ओम है. ऐसा है, ऐसा दिया है. ठीक है, कोई बात नहीं. तो पावर हमें फाइंड करना है. कंपेयर द पावर यूज्ड इन द रेजिस्टेंस. तो पावर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग. ओके, तो सिर्फ इस 2 ओम के लिए मुझे पावर चाहिए. ओके, 2 ओम रेजिस्टर्स के लिए. तो 2 ओम रेजिस्टर के लिए अगर मुझे पावर चाहिए तो उसका फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R, दैट इज रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस तो मेरे पास है 2 ओम, लेकिन V मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मैं ये यूज़ नहीं कर सकता. वाई आई कैन नॉट यूज़ दैट, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस वोंट रिमेन कॉन्स्टेंट इन सीरीज कनेक्शन. ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन मुझे. तो यहाँ पे मुझे पावर अगर फाइंड करनी है यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आई हैव आर पोटेंशियल डिफरेंस मुझे फाइंड करना है, विच आई कैन नॉट यूज़ दिस. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट. अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो उसका कंपेटिटर मतलब करंट मुझे फाइंड करना होगा. तो करंट कैसे फाइंड करेंगे, टोटल करंट तो कांस्टेंट होता है. तो RS इज इक्वल टू 12 + 2 विच इज़ 14 ओम. तो I इज इक्वल टू और R इज इक्वल टू V अपॉन I implies I is equals to V upon R, which is going to be equal to 6/14. तो करंट I have which is 6/14 मतलब 3/7 एम्पियर. यूजिंग दिस नाउ आई कैन फाइंड V. कैसे फाइंड कर सकता हूँ मैं V ऑफ 2 ओम. तो R इज 2, ठीक है, R इज 2 ओम, बराबर है ना. R जो है वो 2 है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I अगर मैं करूँगा, यहाँ पे क्या रहेगा, I इज़ 3/7, R इज़ 2.
v अपॉन i कितना है देख लो, i कितना है, I can use directly this formula as well, v into i, r इज इक्वल्स टू, नहीं आई स्क्वायर आर ऐसा कुछ फॉर्मूला है ना, हाँ वो भी यूज़ कर सकता हूँ मैं डायरेक्टली पावर के लिए, ये फॉर्मूला करने की ज़रूरत नहीं है, देख लो पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी कर सकता हूँ, ठीक है। आई कितना है 9/49 इंटू आर कितना है 2, ठीक है, तो 9 2 ज़ा 18, 18/49 वैट, ये हो गया मेरा पावर, ठीक है। वेयर एज इन दिस सेकेंड क्वेश्चन आई कैन डायरेक्टली फाइंड द पावर बिकॉज एट from the 2 ohm resistance and the potential difference is 4 the potential difference remain constant, so this 4 ohm potential difference in the parallel remains same for 12 ohm and 2 ohm, so I can go for directly finding the power is equals to v square upon r, तो v square कितना हो जाएगा 16 upon r, मतलब कितना हो जाएगा r2, तो it is 8 watt। होपिंग दैट थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल, ओके। लेकिन सीरीज के लिए एंड पैरेलल के लिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, आइडिया सेम है, देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आइडिया सेम है, सेम फॉर्मूला आई एम यूजिंग, लेकिन यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट हमेशा ही दिमाग में रख रहा हूँ कि सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है एंड पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है, दैट्स इट। देख लो, दैट्स द रीजन आई हैव आस्क्ड यू टू सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमने पीडीएफ में लिए थे, क्योंकि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली डिफिकल्ट लेवल तक जाते हैं, डायरेक्टली डिफिकल्ट लेवल, डायरेक्टली चैलेंजिंग लेवल तक जाते हैं, सो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ द टेक्स्ट बुक। So if you want to understand the questions from the textbook properly and quickly, then you need to go for those questions first and then come back to this one. तो चलो आगे बढ़ते हैं 15th वन, 2 lamps, 1 rated, this 2, मतलब power is equals to 100 watt and V is equals to 220 volt, right? तो ये लैम्प 1, लैम्प 2 के लिए क्या दिया हुआ है, पावर इज इक्वल्स टू 60 watt and potential difference is 220 volt, are connected in parallel, these two are connected in parallel in electric main supply। तो ये जो लैम्प 1 है एंड दूसरा लैम्प है, these are L1 and L2 are connected in a parallel combination। what is the current drawn from this line if supply of the voltage, potential difference remains same, that is 220 volt, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करना, इसका आर फाइंड करो, इसका आर फाइंड करो, तो कॉम्बिनेशन का आर फाइंड करो एंड करंट फाइंड करो, दैट्स द बेसिक आइडिया। तो कैन आई फाइंड आउट आर ऑफ दिस वन, इसका आर में फाइंड कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पावर, वी कितना है 2 इंटू अपॉन right, I can convert it if you want, otherwise it's okay। तो यहाँ पे अगेन R इज इक्वल्स टू, फॉर सेकेंड लैम्प R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पावर, वी स्क्वायर कितना है 2 इंटू 220 अपॉन पावर, दैट इज 60 है क्या, हाँ वही मुझे लगा 60 है, ठीक है, 0 0 गेट कैंसिल, ओके, देन 2 3 ज़ा 2 11 ज़ा, सो वी हैव 220 इंटू 11, ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ, विल वेट टिल देयर। तो ये हो गया मेरा ओम, इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, क्लियर, होप यू आर गेटिंग इट, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नाउ दिस R1 एंड R2 नाउ आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, so we'll find out the equivalent resistance 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, so 1 upon 22 into 22 plus 1 upon 22 into 220 into 11। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, मुझे एलसीएम नहीं चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्टली आई विल ट्राई टू ब्रिंग द सेम प्रोडक्ट एज हियर और हियर और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे 22 है, यहाँ पर भी 22 है, तो दैट्स इट। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 नहीं है, तो यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इन दिस वे आई कैन गेट द एलसीएम ईजिली, अदरवाइज यू कैन फाइंड एलसीएम, नो प्रॉब्लम। तो इसको इंटू 10 किया, ठीक है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 11 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट, आई गॉट द कॉमन डिनोमिनेटर, ऊपर 10 और यहाँ पे
इंटू 2. गेटिंग इट? नहीं समझ में आया हो तो डायरेक्टली एलसीएम ले लो, नो प्रॉब्लम, मुझे कुछ इशू नहीं है. तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 22 इंटू 22 इंटू 10. देख लो यहाँ पर, देखो 22 इंटू 22 इंटू 10. सो 22 इंटू 22 इंटू 10 इज माई this one. So now I have to find out RP is equals to 22 into 22 into 10 divided by 12, right? So what I can do, I can go for division if you want by 2, otherwise you can keep it as it is, that's not the problem. Because I wanted to find out what current. Now this is what my R is and this is what my potential difference is. I can find out the current. तो R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, बराबर है ना? देख लो I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो वो यूज़ करता हूँ. I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर. V कितना है मेरा? 220 वोल्ट. R कितना है? ये जो दिख रहा है वो, मतलब 22 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 12, ऊपर जाएगा ना वो 12. सो 0 0 गेट कैंसिल, 22 22 ऑलरेडी गेट कैंसिल, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ I इज इक्वल्स टू 12 बाई 22. You can divide by this, I think 2 6 are 12 and 2 11s are ampere, 6 by 11 ampere. That's it. Okay, थोड़ा confusing लग सकता है आपको, थोड़ा difficult लग सकता है, but you have to manage, no option. ठीक है. Next one, which uses more energy. Okay, this is about energy consumption. So energy consumption का यूनिट क्या होता है? KWH, किलो वैट इंटू आर. ठीक है, सब कुछ आपको किलो वैट या फिर आर में चाहिए. 250 वैट टीवी सेट इन 1 आवर. देखो टीवी 250 वैट एंड 1 आवर, एंड टोस्टर 1200 वैट इन 10 मिनट. 10 मिनट मतलब कितना होता है? 10/60, 1/6 आर इन 1/6 आर. किसका वैट जाता है, किसका एनर्जी जाता है? तो एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम फॉर टीवी. ठीक है, पावर कितना है? 250 अपॉन 1000, क्यों 1000 किलोवाट में कन्वर्ट करना है, इनटू 1 आवर. दैट्स इट. तो ये 0 0 गेट कैंसिल, 25 1/4 KWH, बराबर है. एंड फॉर टोस्टर, सो फॉर टोस्टर वी हैव एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. तो पावर कितना है? 1200 अपॉन 1000 क्यों? किलोवाट में कन्वर्जन, इनटू 1/6. 0 0 गेट कैंसिल, 6 1 6 2 2 1 2 5 1/5. 1/5 मतलब कितना हो गया? 0.2. ओके, KWH, और ये हो जाएगा 0.25 KWH, राइट. तो हुज पावर इज़ मोर, हु हैज़ यूज मोर एनर्जी? तो ये जो है मतलब टीवी इज़ यूजिंग मोर एनर्जी कंपेयर टू टोस्टर, क्योंकि ये 0.25 है, ये 0.2 है. ठीक है ना, समझ में आ गया? सिंपल था, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, एकदम सिंपल एंड ईजी कॉन्सेप्ट. लेकिन कन्वर्जन यू नीड टू नो, तो ये याद भी रखना पड़ता है एंड सॉल्व भी करना पड़ता है. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन दैन दिस. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम. Okay, electric heater is of resistance 8 ohm. Draws a current, this one. From the service main, it means the connection. Calculate the rate at which the heat is developed in the heater. Okay. So it is Joule's law, that is heating effect of electric current. So heat energy, heat is nothing but I square RT, right? I square, तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. ठीक है ना. हीट आई स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 15 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर इंटू आर. आर कितना है? 8. टाइम कितना है? 2 आर. आर में नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज़ एसआई यूनिट. एसआई यूनिट क्या है? टाइम का. टाइम इज इक्वल्स टू 2 आवर्स, तो इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 60 इंटू 60. तो 2 इंटू 60 इंटू 60. इफ आई कंप्लीट दिस आंसर, हीट विल बी इन जूल.
एनर्जी है ना ये, हीट इज़ एनर्जी, इट सेल्फ इज़ नथिंग बट वर्क डन, जूल में आ जाएगा वो, एंड दैट्स योर आंसर, वट एवर द आंसर इज. आई नो इट्स going to be quite big energy, but of course we have to write that. I have to calculate it. Okay, so that's it, done, completed. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. आई होप ऑल द डाउट्स आर क्लियर राइट नाउ, एक्सेप्ट वन सिंपल डाउट विच वी kept it pending. Okay, that later on we will discuss, so don't worry. Right now try to complete it, but today at any cost I want all your these numericals of exercise should be completed. Still if you have doubt, I will separately send those typical doubts again. आई नो फ्यू क्वेश्चंस वेरी डिफिकल्ट, तो थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाओगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा. फिर भी आपके लिए कोई डाउट है, यू कैन क्विकली सेंड इट टू मी. ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो.